Hey guys, good afternoon. I'm here once again on my channel Hobby to Passion, a gateway to informed stock analysis. I'm here with yet another topic, yet another stock for discussion. And before I begin, let me introduce myself once again. I am an avid techno fundamental analyst of stock market instruments. Those instruments can be stocks, bonds, crypto, derivatives, forex, uh, ETFs, etc. I am an avid investor as well, and most importantly, I am a disciplined trader. When I call myself disciplined trader, I mean that you know I ensure that I'm carrying the three basic important factors that are required to be called a disciplined trader. Number one, I ensure the risk management, I ensure the money management, and I ensure the psychology management of all my trades that I take for me. And this is what I feel that every trader you know uh, must be having in his kitty, that being called a disciplined trader. 95% of the people, the retail traders, they are on the losing side only because they lack the discipline and the consistency in their approach. And the 5% on the winning side, those who trade or swim along with the FIIs and DIIs, is because they are doing the trading in the direction and in the right mindset, the way that these big fishes are actually doing. So let me tell you that you can also be among those 5% of the people who are actually focused on generating profits or side hustle by keeping the three pillars, the basic pillars: money management, risk management, and the psychology management, intact in all your trades. This is actually that will you will tend to know that what exactly these three pillars are in the coming videos as well. So then we have I'm dead against speculation. This is my personal understanding. It's not that everybody you know should be agreeing with me, but yes, this is not for me. I'm not a speculator in any sense, in any form, because speculation, be it intraday or um, margin trading or whatever, I am not for that. I feel that whatever there, you should be owning it in your demat accounts, and you should have a peaceful night's sleep. That's it. This is my sole aim. And yes, uh, this the reader or the user of this video and the analysis that I'm doing, this is based on my own understanding of the market and its working. And you may or may not agree with the way I am doing it or analyzing it, the criteria used by me. So yes, we can differ to that aspect, in case at all. And yet yes, most of my followers, most of my well wishers, they agree with me. That's the reason they are with me. And I yes, that's my prime responsibility to take care of their understanding as well. And those are the people who actually give me a valid inputs at times, in all the social media channels, wherever I'm connected with them. So having said that, let's get going. What's there? This is the most important thing. ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक डिस्क्लेमर देना कि हाँ, ये यहाँ पर जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, या जो भी मैंने अभी तक कहा है, या ये चैनल जो भी आपको पोर्ट्रे करेगा, वो मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में। एंड ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप मेरे से इत्तेफाक रखें इस चीज़ के लिए। बट येस, अगर आप इत्तेफाक रखते भी हैं और इस चैनल में दर्शाई गई या इस वीडियो में दर्शाई गई कोई भी चीज़ पे आप ट्रेड भी करते हैं, तो उसकी रिस्क और
प्रोज एंड कॉन्स आप समझ के, भली भांति समझ के, उसके बाद में उस ट्रेड को आप लीजिएगा। बिकॉज लॉस जो भी होगा, गेन जो भी होगा, होल्डिंग जो भी रहेंगी, वो सिर्फ आपकी ही है। आई कैन ओनली पोर्ट्रे जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मैंने समझा है इसके बारे में, ट्रेड के बारे में, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड के बारे में, स्टॉक के बारे में। ये मेरे अपनी समझ है और इसलिए ये मैंने इस वीडियो में दर्शाया है। तो जो भी इसका नफ़ा नुकसान होगा वो प्योरली एक इन्वेस्टर या यूज़र जो होगा, जो इसके ऊपर ट्रेड करता है, उसका अपना होगा। हम चैनल के कोई भी सदस्य इसके भागीदार नहीं होंगे। आपका नफ़ा है तो प्योरली आपका है, नुकसान है तो भी आपका है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को देना। मैं सिर्फ ये राय साझा कर रहा हूँ आपसे जो मेरे को लगा इस स्टॉक के बारे में। लेट्स गेट गोइंग। अब आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ बड़ा ही अच्छा स्टॉक है, काफ़ी पुराना है, इंडियन ग्रुप काफ़ी पुराना है इंडियन स्टॉक हिस्ट्री में। और उनका स्टॉक ये रिलेटिवली नया ही है, बट ग्रुप पुराना है आई शुड से। ये स्टॉक है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे जेपी पावर। इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको पहले मैं दे दूं कि ये एनएससी में मार्च 2005 में लिस्ट हुआ था 33.45 इंडियन रुपीज़ 33.45 में। और उस वक्त इनका जो आईपीओ आया था वो आया था 32 रुपीज़ पर शेयर। सो ऑलमोस्ट एट पार इसकी लिस्टिंग हुई थी 2005 मार्च में। और लाइफ टाइम हाई ये उसके 3 साल बाद में, लगभग 3 साल बाद में इसने लाइफ टाइम हाई टच किया था इंडियन रुपीज़ 143.40, जो कि जनवरी 2008 में इसने अचीव किया था। और अब अभी के केस में जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसके मुताबिक इसकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो शेयर होल्डिंग इक्विटी मीन्स जो नेटवर्थ, मेरे को याद कहना चाहिए कि 107.1 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ हैं। और टोटल डेट जो है इसके अगेंस्ट में इंडियन रुपीज़ 44.0 बिलियन। वो इसका मतलब है कि डेट इक्विटी रेशो 41.1%। डेट इक्विटी रेशो में जनरली ये माना जाता है कि 2:1, मतलब एक 100 रुपीज़ का ओनरशिप और 100 रुपीज़ की कैपिटल और 200 रुपीज़ का डेट। दिस इज़ व्हाट दे कॉल इट एज ए sufficiently leveraged बैलेंस शीट और द कंपनी। तो 2:1 एक ठीक ठाक माना जाता है। तो ये तो काफ़ी कम है उससे। और टोटल एसेट्स जो है इसके 173.8 बिलियन के हैं और लाइबिलिटीज़ जो है 66.7 बिलियन की है। तो ये भी रिलेटिवली ठीक ठाक पोजीशन में है। तो इसकी नेटवर्थ अगर हम देखें तो नेटवर्थ का जैसे जो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं वो है शेयर होल्डर इक्विटी माइनस द टोटल डेट। तो शेयर होल्डर इक्विटी है 107.1 बिलियन और जो डेट है वो 44.0 बिलियन है। तो 63.1 बिलियन का इसका नेट वर्थ है स्टॉक का, जो शेयर होल्डर को एट्रीब्यूट होता है। अब इसका मैं टेक्निकल साइड में आता हूँ। टेक्निकल साइड में ये बीच में काफ़ी परेशानी में रहा ये पूरा ग्रुप जेपी का, स्पेशली रियल एस्टेट की वजह से। तो उसमें काफ़ी प्रेशर में रहा और इतने वॉल्यूम्स भी नहीं थे, एकदम ड्राइड आउट हो चुके थे वॉल्यूम बोर्सेस से। बट फिर भी इसका जनवरी 22 से फिर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगा है। और अब वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहा है और नेचुरली जब वॉल्यूम शुरू में था फिर ड्राई आउट होने लगा फिर वापस बढ़ने लगा, तो ये इसने एक चार्ट पैटर्न को डेवलप किया। और ये चार्ट पैटर्न जो था ये 8.5 साल लगे इस चार्ट पैटर्न को डेवलप होने के लिए। वो कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ और सितंबर 2023 में कंप्लीट हुआ। 8.5 साल का टाइम लिया। 8.5 नहीं, यहाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो रही है, 5.5 साल मुझे करना चाहिए इसको लगभग। तो लगभग 5.5 साल का इसने टाइम लिया है। और इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न है जिसको जो कि
टाइम के साथ में डेवलप हुआ है 5.5 साल के टाइम में। और ये जिस वक्त पूरा कंप्लीट हुआ था सितंबर 2023 में, उस वक्त ये एज ऑलवेज जैसे कि बुलिश पैटर्न्स डेवलप होने के बाद होते हैं, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच के पूरा कंप्लीट हुआ था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है, मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ है वो, ये देखिए, ये है एक, लेट मी टेक अ पेन, हाँ ये देखिए, ये वाला जो है दिस इज़ अ शोल्डर, दिस इज़ अ हेड एंड दिस इज़ अ शोल्डर अगेन। तो इसको बोलते हैं, और क्योंकि ये इन्वर्टेड है, ये नॉर्मल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो इस ढंग से होता है, ये शोल्डर होता है, ये हेड होता है, और ये वाला एक और शोल्डर होता है। तो जनरली ये नॉर्मल शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। और ये जो मैंने अभी इसके अंदर निकाला है ये वाला सारा, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न एक बड़ा ही बुलिश चार्ट पैटर्न है जिसके ऊपर अच्छे ट्रेड हमें मिल सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या इसमें आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो अब इसका एनालिसिस क्या है। मैंने इसका पहली बार जब एनालिसिस किया था इट वाज इन सितंबर 2023, जिस वक्त की शेयर का प्राइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर चल रहा था 10 रुपया 30 पैसा। सितंबर 23, जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि सितंबर 2023 में ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हुआ था। और उस वक्त ही मेरे एनालिसिस में मेरे नज़र में आया था ये पर्टिकुलर स्टॉक। और उस वक्त मैंने अपने एनालिसिस को जो स्पेशल मेरा जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ साझा किया था ये कि ये इसके अंदर मेरे को एक अच्छा मूव आता नज़र आ रहा है। और ये आप मेरा ट्रेडिंग व्यू की जो प्रोफाइल है जैन मनीष DY, उसमें आप जा कर के इसको आप चेक कर सकते हैं। और उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने इस आपका जो पिछला अब जो दिखाया था ये उसी का ही लिया हुआ स्क्रीनशॉट था। ये वहाँ ट्रेडिंग व्यू की जो मेरे प्रोफाइल है, मैं फिर भी उसके लिए आपका एक बार अभी यहाँ साझा कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरा उस वक्त का कोट था जो मैंने 19 सितंबर 2023 में लिखा था। JP हैज़ completed a long term inverted head and shoulder pattern recently. Considering this positive move, we should expect a move up to double the current levels from 1050. Keep tracking the move and invest sensibly. ये मेरा उस वक्त 10 रुपया 50 पैसे का जो ये था क्या बोलते हैं रीडिंग थी उस वक्त उस पर्टिकुलर दिन की। तो उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि ये अच्छा पैटर्न है और ये मैं मूव को डबल लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें मिल सकता है हमें। ये मेरा उस वक्त का ये चैनल की जो डेट है, ये चैनल की मेरे नाम है, और ये उसकी टैगलाइन थी जो मेरी एनालिसिस थी। और नीचे वही पैटर्न जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये वही वाला पैटर्न है पूरा, ये वाला पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्वर्टेड। अब इस एनालिसिस के बेसिस पर मुझे टारगेट क्या नज़र आ रहे हैं टेक्निकली स्पीकिंग। टेक्निकली इसको एज ए सेड कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश मतलब वी कैन गो लॉन्ग फॉर द स्टॉक इन द स्टॉक। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में इसमें कैसे देखा जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जब हम जो हेड होता है उस हेड का जो ब्रिम होता है, जैसे ये हेड, अगर ये वाली ब्रिम है, ये आपका हेड बना है, ये शोल्डर बना है और ये भी एक शोल्डर बना है, तो ये जो डेप्थ होती है इस डेप्थ से डबल यहाँ से ऊपर, जितनी ये डेप्थ है उतना ही ऊपर का टारगेट लिया जाता है। ये टेक्निकली इसको इस ढंग से इसको कंसीडर किया जाता है। सो एज पर द एनालिसिस द डेप्थ ऑफ द पैटर्न टू द ब्रिम shows that we should expect a jump of an equal amount from the brim of the inverted head. As I said, ये जो मैंने अभी सिंपल भाषा में आपको बताया कि ये यही चीज़ है कि ये जो डेप्थ है इसी को ये इस ब्रिम से लेकर ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक का ये जो टारगेट है एग्जैक्टली ये जो मेजरमेंट होता है, तो लगभग यही इतना ही ये माना जाता है कि आपको ये टारगेट दे देगा। अब 19 सितंबर 2023 को जो इसका प्राइस था वो था आपका
₹10.30 एज आई सेड अर्लियर। 5 जनवरी जब मैंने ये वीडियो के डेटा बनाया था, उस वक्त 5 जनवरी को जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था ₹16.85 विद अ हाई ऑफ ₹17.80 ऑन दैट डे। 5 जनवरी को ये वाला ₹17.80 का ये हाई इसने स्टॉक ने अचीव किया था उसी दिन का। सो वी कैन ऑलवेज सी दैट इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 70% ये स्टॉक ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इनिशियल टारगेट फिर भी मेरा तो जिस वक्त ये एनालिसिस मैंने 19 सितंबर को फाइनल किया था, उस वक्त था कि 20 से 21 रुपया के करीब, इंडियन रुपीज़ 20 से 21 रुपया में इसका टारगेट मेरा उस वक्त का था। लेकिन अभी जिस ढंग का मोमेंटम और मूवमेंट में देख रहा हूँ, वॉल्यूम्स देख रहा हूँ, मेरा इसका सेकंड टारगेट प्राइस जो है वो भी अचीव होता नज़र आ रहा है। वो है 25 से 26 रुपया, और टाइम फ्रेम मैं लूँगा इसका वही 1 से 1.5 साल के बीच का। अभी का टारगेट कहाँ स्टैंड कर रहा है, मैं आपको इसका एक स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगा। ये है अभी का टारगेट, जिसके अंदर ये हमारा पुराना ये जो ऑलरेडी जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न है, और ये उसके बाद से ये इतना मूव ऑलरेडी कवर कर चुका है। ये वाला चीज़ ऑलरेडी ये कवर कर चुका है, और अभी भी इसके अंदर एज आई सेड की जूस बाकी है। तो थोड़ा सा टाइम और है कि इसका अंदर हमें कुछ और मिल सकता है मैटर। अभी इसका ऑन द फंडामेंटल साइड इसके ऑर्डर बुक को जब मैंने देखा तो देखा कि इसके पास 3940 मेगावाट का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में है, और ऑलरेडी एक्टिव पावर जनरेशन कैपेसिटी है जो 9800 मेगावाट की है। तो फ्यूचर इसका बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे, और पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो हमने जो एक एनालिसिस अभी की है टेक्निकल साइड में भी, वो भी इन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स से मैच कर रही है, कॉन्फ्लुएंस कर रही है। तो कंक्लूजन में क्या रखूँगा इस वीडियो का, कंक्लूजन ये रखूँगा, द एनालिसिस है सजेस्टेड टू कंक्लूड दैट आई शुड प्रोसीड फॉर अ बाय विद अ टारगेट प्राइस एस्टेब्लिश्ड। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 साल में 25 रुपये के आसपास का इसका टारगेट मैं लेके चलूँगा अपने लिए। और स्टॉप लॉस, अगेन स्टॉप लॉस की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है या डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस क्या रखना है। आपके हाथ में सिर्फ वही है कि आप लॉस कितना खा सकते हैं, प्रॉफिट आपके हाथ में कभी नहीं होना चाहिए। आपको पास में ये होना चाहिए कि अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं मैक्सिमम कब एग्ज़िट कर जाऊंगा, इस ट्रेड से इतना ही लॉस मेरे को लेना है। ये एक हर डिसिप्लिन ट्रेडर और इन्वेस्टर की क्वालिटी होती है, जो मैं हमेशा अपने वेल विशर्स और फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि आपके हाथ में ये पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। सो मैं अगर इसमें 16 रुपीज़ और 70-80 पैसा के आसपास का अगर मैं एंट्री प्राइस रखता हूँ अपने लिए, तो लगभग 1 रुपये का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, और उससे 15 रुपये 75 पैसा के आसपास, इंडियन रुपीज़ 15 रुपये 75 पैसा के से नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाऊंगा। तो इससे मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है गिवन द टारगेट अगर मैं 25-26 रुपये का लेके चल रहा हूँ तो 1:3 का मेरे को एक साइजेबल 1:8 का एक साइजेबल रिस्क टू रिवॉर्ड का मेरे को मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो एक ये ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। सो that's about it. You can follow me on my social media handles, TradingView, WhatsApp channel, Instagram, X, Telegram। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कुछ मैंने अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश की है। आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा तो आगे आगे बढ़ता जाऊँगा। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर कि ये इसमें इंसाइटफुल रही होगी आप लोगों के लिए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने और मेरी टीम ने एनालाइज करके निकालने की कोशिश की है, हो सकता है इसके अंदर कुछ त्रुटियां रह गई हो मेरे बोलने और समझाने में, तो वो आप फीडबैक लिखिएगा कि ये चीज़ प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपग्रेड करके ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आपसे वादा रहा कि मैं जब भी नया वीडियो लाऊँगा तो एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ ही लाऊँगा। तो हॉबी टू पैशन जो है, ये पैशन मेरा बड़ा
दिल से लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं अपग्रेडेशन मेरा एक इसका सबसे प्राइम रोल रहेगा हमेशा, कि मैं कितना अपने आप को अपग्रेड करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। और आप लोगों का नॉलेज को जो ऑलरेडी काफ़ी नॉलेजेबल है, मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस, तो उनको और जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो आपके साथ साझा करता चला जाऊँगा। चलो सर, सी यू for the next video, and till that time, keep rocking, keep earning, stay healthy, stay blessed. Thank you so much.